اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو استعینو تم مدد مانگو بالصبری صبر کے ساتھ والصلاۃ اور نماز کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے اصل معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ قرآن اور سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 حصے ہیں۔ ایک اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، دوسرا اطاعت اور عبادت میں اپنے نفس کو پابندی پر مجبور کرنا، تیسرا مصائب اور آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار ہونا۔ اس کے ساتھ اگر تکلیف اور پریشانی کے اظہار کا کوئی کلمہ منہ سے نکل جائے تو وہ صبر کے منافی نہیں ہوتا۔ ان تینوں حصوں پر صبر کرنا جو ہے وہ اس صبر کے فرائض میں داخل ہے کہ ہر مسلمان پر یہ پابندی عائد ہے کہ تینوں طرح کے صبر کا پابند ہو۔ ہمارے نزدیک یعنی عوام کے نزدیک جو صبر ہے وہ صرف تیسرے حصے پر صبر کرنا یعنی مشکل اور مصائب پر صبر کرنا، اسی کو صبر سمجھا جاتا ہے۔ باقی 2 حصے جو ہیں وہ صبر کے جو اصل اور بنیاد ہیں، عام طور پر ہم ان کو صبر میں داخل نہیں سمجھتے۔ قرآن اور حدیث میں صابرین جو ہے انہی لوگوں کا لقب ہوگا جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ محشر میں ایک آواز دی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر میں قائم رہ کر اپنی زندگی گزارتے رہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ ہے کہ صبر مشکلوں کو حل کرنے اور مصائب کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے، یعنی کہ صبر کے نتیجے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ رب العزت کی طاقت ہو اس کا کون سا کام ہے جو رک سکتا ہے اور کون سی مصیبت ہے جو اسے عاجز کر سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا اور نہ تم کو ہو لمن اس شخص کو یقتل جو مارا جائے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اموات مردہ بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں ولیکن اور لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ ناک ہو، یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو مردہ مت کہو، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں لیکن لا تشعرون تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے زندہ رکھا ہوا ہے۔ ان کو مردہ کہنا جائز نہیں۔ شہداء کی تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہید جو ہے وہ اس کا زمین پر خون کا قطرہ گرتا نہیں کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ تو شہداء کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شہید ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی قبر میں یا برزخ میں، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے کہ اللہ نے ان کو کیسی زندگی دی ہوئی ہے، کیسی ان کے ساتھ کیسے معاملے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ظاہر ہے کہ ان کو مردہ کہنا جائز نہیں ہے، لیکن جو ظاہرہ ایک کام ہے ان کے پیچھے دنیا میں وہ تو ظاہر ہے دنیا سے تو پردہ کر گئے لیکن ان کے ظاہرہ احکام ان کے بعد ان کی وراثت بھی تقسیم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد جو ہے وہ ان کی بیویاں دوسری شادی نہیں کریں گی، نہیں، ان کے پیچھے سے ان کے احکام جو ہیں وہ عام مردوں کی طرح ہی ہوں گے، ان کی وراثت بھی تقسیم ہوگی اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ دوسروں سے نکاح بھی کریں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو بِشَيْءٍ کسی چیز کے من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے،
वनक्सिन और नुकसान से मिनल अमवाली मालों के, वल अनफुसी और जानों के, वसमराती और फलों के, वबश्शिर स्वाबिरीन और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अब ये जो आयत है वला नबलुवन्नकुम, अलबत्ता अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम तुमको ज़रूर आजमाएंगे किसी चीज़ के खौफ से। ये अल्लाह ताला ने पहले बता दिया कि इंसान को आजमाया जाएगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आजमाया। पीछे पड़ा वइज़ब्तला इब्राहीम रब्बहू। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर इंसान यानी किसी तरीके, बाज़ इंसान को खौफ दे के अल्लाह ताला आजमाएंगे, बाज़ को भूख दे के आजमाएंगे, बाज़ लोगों को फलों का नुकसान दे के, वनक्सिम मिनल अमवाल, अगर वो खेती बाड़ी का काम करते हैं तो उनके मालों में नक्सिम मिनल अमवाल जो है उनके किसी भी माल में जो है वो नुकसान दे के, कारोबार में नुकसान दे के आजमाएंगे कि अल्लाह ताला देखेंगे आया बंदा सब्र करता है कि नहीं। यहाँ भी सारे मामला जिस तरह के ऊपर आपने पढ़ा वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे भी आ रहा है कि खौफ और भूख और माल का नुकसान कई तरह का हो सकता है, वाल अनफुसी और जानों का नुकसान, रिश्तेदारों का, अपने अजीज़ों का दुनिया से चले जाना, वस समरात और फलों का नुकसान, कोई बागबानी करता हो, कोई फलों का कारोबार करता हो, उसके नुकसान से अल्लाह ताला आजमाएंगे। फिर आगे क्या आ रहा है, यहाँ से कोई सदमा भी हो सकता है, जान का सदमा भी हो सकता है। ये खिताब सारी उम्मत को है कि दुनिया जो है वो असल में मेहनतों और तकलीफ़ों की जमा है। किसी तरह का भी जो नुकसान है वो लोग, अगर हम उस पर नफ्स अमल यानी हमारा जो नफ्स है वो सब्र के साथ अमल करेगा तो सिला भी उसको उसके मुताबिक ही मिलेगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वबश्शिर स्वाबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। जिस तरह के पहले मैंने बताया कि एक निदा दी जाएगी, महशर में एक ऐलान किया जाएगा, एक आवाज़ दी जाएगी कि कहाँ है साबरीन। तो उस वक़्त जो सब्र की 3 शराइत हैं, 3 दर्जे हैं, उन तीनों पर सब्र, तीनों दर्जों पर पूरा उतरने वाले लोग वो अल्लाह की तरफ से खड़े हो जाएंगे। जब वो खड़े होंगे तो उनको बग़ैर हिसाब किताब के, वबश्शिर स्वाबिरीन, क्या खुशखबरी है उनको, वो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। वो कौन लोग हैं, अल्लज़ीना, अल्लाह ताला के फरमा रहे हैं अल्लज़ीना, वो लोग इसको अस्वाबत हम, जब आ पहुँचती उनको कोई मुसीबत, क़ालू, वो कहते, इन्ना लिल्लाही, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, व इन्ना, और बेशक इलैही, इसी की तरफ, राजिऊन, लौट कर जाना है। अब ये है साबरीन, जो सब्र करते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में। अल्लाह ताला के जो भी मसाइब हो, चाहे वो अल्लाह ताला के रास्ते में तकलीफ़ हो या घर में हो, तो वो जो लोग इसको सब्र करते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ऐसे लोग जब उनको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो दिल से, दिल के साथ क्या लफ्ज़ अदा करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के लिए बने हैं, हमें व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। यानी साबरीन की निस्बत करके फरमाया कि वो मुसीबत में जब ये लफ्ज़ बोलते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हकीकत में मकसद इसका ये होता है कि हम अपने रंजो गम में भी वो अल्लाह को याद रखते हैं, रंजो गम में भी अल्लाह को नहीं भूलते। तो अपने दिल की तसल्ली के लिए अल्फाज कहते हैं कि कैसी भी सूरत हो, कैसी भी हालत हो, हम लोग अल्लाह ही के लिए, हमारी ज़िंदगी अल्लाह ही के लिए है, हमारा जीना मरना, हमारी जो है वो अल्लाह के लिए है। तो ऐसा कहने से इनके दिल को भी तसल्ली होती है और यही तसल्ली जो है वो सब्र का काम देती है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे ऐसे लोगों, उलाइका, वही लोग हैं, अलैहिम, ऊपर उनके, सलावातुन, शाबश है, अनायतें हैं, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, व रहमतुन, और रहमत है, व उलाइका, और वही लोग हैं, हुमुल मुहतदून, वही हैं हदायत पाने वाले। ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इनायतें हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में भी अल्लाह ताला इन पर बहुत ज़्यादा इनायतें करते हैं और अल्लाह की रहमत इन लोगों पर होती है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यही वो लोग हैं जो हदायत पर हैं। आगे है इन्ना, बेशक, सफ़ा वल मरवता, और मरवा, मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से हैं।
फमन हज्जल बैता, बस जो कोई हज करे बैतुल्लाह का, आवी अतामरा या उम्रा करे, फला जुनाहा, पस नहीं कोई गुनाह अलैहि ऊपर उसके, अन तवफ़ा ये कि वो तवाफ़ करे, बिहिमा उन दोनों का, यानी सफ़ा और मरवा का, वमन ततव्वा और जो कोई खुशी से करेगा, खैरन नेकी, फ़इन्नल्लाह बस बेशक अल्लाह ताला शाकिरुन कदरदान अलीमुन जानने वाले हैं। अब जो सफ़ा और वो मरवा है ये दो पहाड़ियाँ हैं। हज और उम्रा में इनका तवाफ़ करना, यानी खाना काबा के तवाफ़ के बाद, इनका तवाफ़ करना नहीं, खाना काबा के तवाफ़ के बाद इनके दरमियान में, सफ़ा और मरवा के दरमियान में दौड़ते हैं और इसको सही बोलते हैं। चूँकि ज़माना जाहलियत में भी ये दौड़ ये साई होती थी, इस वक्त सफ़ा और मरवा में कुछ मूर्तियाँ रखी हुई थी, इसलिए बाज़ मुसलमानों को शुबा था कि शायद ये रस्म है ज़माना जाहलियत की कि इसके दौरान दौड़ती हैं, यानी कि उन्होंने ज़माना जाहलियत में कुछ मूर्तियाँ सफ़ा में और कुछ मरवा में रखी हुई थी, वो उनके लिए दौड़ते थे। तो बाज़ मुसलमानों को ये शक हुआ कि शायद ये उस वक़्त की ही कोई रस्म है और अब ऐसा करना जो है वो मौजबे गुनाह है, क्योंकि बाज़ जाहलियत के लोग भी इसको जब तब गुनाह समझते थे, इसलिए शुबा हुआ कि शायद इस्लाम में भी ये गुनाह है। तो अल्लाह ताला ने इनका ये डर, इनका ये शुबा जो है उसको अल्लाह ताला ने ख़त्म फरमाया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो खाना काबा यानी अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ करे सफ़ा और मरवा के दरमियान के बाद, अल्लाह ताला के घर के तवाफ़ करने के बाद सफ़ा और मरवा में दौड़ना जो है वो गुनाह नहीं है, बल्कि अगर कोई खुशी से करेगा तो ये नेकी है उसके लिए और अल्लाह ताला उसकी नेकी को जानने वाला है और कदरदान है। अल्लाह ताला नेकी